Jai Hind बच्चों. Good morning to one and all those who are watching my video. Today, one of the simple chapter. I repeat, one of the simple chapter. The name of the chapter is Circle. From 8th standard, I think so from 7th also, 6th, 7th, 8th, 9th, and today we are in 10th standard. We are learning something about circle. And this is a board exam, so there is something little bit fear in everyone's minds. It's fine, okay. So today I will try my best for this chapter, especially in circle. I will put my all the efforts to make that chapter simple, because I don't know, but it's very true that each and every one child there is fear, because by reading also we don't understand. When you try to study by yourself, when you read the open regarding just a circle chapter, if you try to understand by yourself, it's not so easy. It's not possible for yourself. It takes a lot of time. It will take your time, and you will think that it's a waste of time, because now at this stage you people have no time. At any cost, in a short period of time, you want to gain maximum. Yes, it's a very crucial time, and everyone should think in that way only, that in a short span of time you want to achieve more and more things. Then only you will be at somewhere at good position. When the results will be declared of 10th standard, you will have a good position. That will give you satisfaction. If you try to spend more and more time for a short concept, a little concept, it's a waste of time, because now time play a very important role, and it's a board exam. Like previous 2-3 years, they were lucky people. I will say that they were lucky people. If they have studied or not studied, it's leave them. They have passed 2019 onwards because of COVID-19. The reason is COVID-19. School were shut down. Government has put the order that school are shut down. Keep going study online. Whereas in city places it was possible. Whereas in village places it was not possible. Even though in India there are some village where there is range problem, still there are not Android mobiles also. We are saying that we are developing. We are using this word developing. We are developing. प्रगति कर रहे. कब प्रगति होने वाली है खुदा जाने. We know that. I write in my solution. We know that. What we know that everyone knows. बस खुदा को पता है. We know that का मतलब क्या होता है, हमें सब आता है. Exact every 4 to 5 years, whenever the new election comes for PM, they are saying that we are making a tremendous change. हम प्रगति कर रहे, बहुत प्रगति कर रहे. काहे की प्रगति कर रहे, अब उनको पता है. मुद्दे की बात है. कहा था मैं? हाँ, अपना टाइम किसी भी हालत में समय सेव करो. हैज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. अब मैं बार एजुकेशन टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ. अरे फिलहाल सिचुएशन वैसी है कि अब 10th की एग्जाम में पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है. कंपेयर टू लास्ट ईयर 20% या 30% या 25% उन्होंने डिलीट किया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बच्चों को छूट दी थी. लिखने की आदत छूट गई थी. स्कूल को जाने की आदत रुक गई थी. उसके लिए सिलेबस कम, टाइम भी बढ़ा दिया था. अगर 2 घंटे का पेपर है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का है तो 3 घंटे का टाइम स्पेंड भी बढ़ा दिया था. वो उस समय सोच सही थी. अब उन बच्चों के दिमाग में क्या गया वो भगवान को पता है. अगेन वी नो दैट. वो भगवान को पता है, उन बच्चों को पता है. बट दैट विल नॉट ब्रिंग अ ट्रेमेंडस चेंज इन आवर कंट्री. अब वो बस बच्चों को रुका नहीं जा सकता है, आगे ढकल दिया, ऐसे बोलना चाहिए. उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं. अरे अगर मैंने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की और मैं 10th में आ गया, 9th से लेकर 10th तक, सिर्फ मेरा खुद का समाधान हो गया, मैं 9th से 10th में आ गया, पर मैंने क्या अचीव किया, वी नो दैट. अब लिटरली इट्स वेरी ट्रू. वो छोड़ दो. मुद्दे की बात सरकार. और एक बात ध्यान में रखो, हमारी सोच है या हमें सिखाया गया, स्ट्रगल इज अ पेन. स्ट्रगल इज अ पेन. गलत. स्ट्रगल मीन्स स्ट्रेंथ. I say, people say struggle means pain. I say struggle means strength. तुम जितनी कोशिश करोगे, जितनी तकलीफ तुम्हें होती है, उससे क्या होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है. एक शॉर्ट एग्जांपल देता मैं, तो आपको पता चलेगा. सेंटेंस के साथ एग्जांपल चिपक के दिया गया तो बच्चों को एहसास होता है. मैं आपके स्कूल में आया पीटी टीचर समझ के, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपके स्कूल में आ गया पीटी टीचर. आपके पहले के पीटी के टीचर भी थे,
वो आपसे एक्सरसाइज करवा के देते थे और बस ग्राउंड को एक चक्कर लगाते थे। मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मेरी अपनी स्टाइल है। मैंने बच्चों को डेली कंपलसरी, मेरा रूटीन था वो, एज अ टीचर बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो मैं अपना काम बड़े ईमानदारी से करता। पीटी का टाइम हो गया, चाहे वो 8 के बच्चे हो गए 10 के, स्पेशली 10 के बच्चों को मैं सबको लेके आया नीचे ग्राउंड पे। पीटी एक्सरसाइज 1 2 3 4। पहले दिन थोड़ी हंसी मजा, 2 चक्कर लगवाए, तो भी हंसी मजा में, मजाक में 2 चक्कर लगवाए, अच्छे थक गए। अच्छा पावर टीचर है, पहले हंसाया, बच्चे खुश हो गए, फिर 2 चक्कर लगाए। थोड़े आदत नहीं थी, भागना आदत थी। आदत उनकी कैसी, सिर्फ दौड़ना और रुक जाना, नहीं सर थक गए, छोड़ दिया। पर आउटे सर आकर पीटी टीचर बोल के 2 चक्कर पहले दिन ही, थोड़े एक्सरसाइज भी करवाए। पूरा 1 घंटा मैंने आपका सही इस्तेमाल किया। किसी बच्चे को गुस्सा आ गया, कुछ बच्चे खुश हो गए, ठीक है। दूसरे दिन में लेके आया मैं, फिर मैंने बातचीत कम करना स्टार्ट किया और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस दिया। एक्सरसाइज करो, ठीक है, 3 चक्कर लगाओ वही ग्राउंड पे। अरे लड़कियां तो थक गई पूरी तरह से, इतनी थक गई कि बाबा इतना गुस्सा है लड़कियों को कि बस अब वो सोच रही सर को पकड़ के मारो। पर अब ह्यूमन बीइंग्स, गुस्सा आता है पर मार तो सकते क्या, मार तो नहीं सकते, छोड़ दिया उन्होंने। पर भागना तो पड़ता है सबके साथ, एक्सरसाइज सबको कंपलसरी है। बच्चे भी थोड़े थक गए। तीसरे दिन लड़कियों को 3 चक्कर, लड़कियों को 4 चक्कर, लड़कियों को 4 चक्कर। 5वें दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, एक रूटीन बन गया। अब तुमको पहले जो हंसी मजा लगी थी, पीटी बोलते कुछ नहीं, पीटी एक्सरसाइज करने, उसमें क्या बड़ी बात है कि सर पीटी के साथ साथ हमें दौड़ा भी रहे। आप सब बच्चे बस गुस्सा हो रहे, कोई बात तो नहीं कर रहा, गुस्सा तो सब हो रहे। ऐसा मैंने पूरा 6 महीने तक किया। हालांकि अब आधे से ज्यादा बच्चे मेरे से ना खुश थे। लड़कियां तो इतनी गुस्सा करती थी, सिर्फ सर को मारना मारकी करती थी, बस मैं दिखा कि गुस्सा था। पर हुआ क्या, 6 महीने के बाद क्या हुआ, लग बाय चांस एक कंपटीशन रखी गई। कोई तो भी बाहर से आया था आदमी, उसने कंपटीशन लगी कि एट तालुका लेवल पूरे स्कूल को, किसी को कुछ पता नहीं था, पर सडन आया कोई तो कहीं किधर से भी थी और उसको कुछ लड़के या लड़कियां चाहिए थी 10 स्टैंडर्ड में से। तो उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। क्या ऑर्गेनाइज किया, इवेंट की 3 किलोमीटर की रेस है, सिर्फ 10 स्टैंडर्ड के बच्चे, पैठन तालुके में से जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं सब ने वो पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और यार जैसे उन्होंने सुना ऐसे कुछ इवेंट है और जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो स्पोर्ट्स में जाने वाले हैं और वो भी स्टेट लेवल पे, और उनका पूरा खर्चा कौन करने वाला है, महाराष्ट्र सरकार करने वाली है। जैसे तुमने बस वो एड देखी, 6 महीने तक जो मेरे को तुम गालियां दे रहे थे एज अ स्पोर्ट टीचर बोल के, क्या नालायक आदमी है, कितना दौड़ता है, ऐसा करता है। अब 6 महीने में हुआ क्या, चुपचाप जब तुम भाग रहे थे, मेरे को गालियां भी दे रहे थे, तो अपना स्टेमिना बढ़ गया। और जिस दिन तुमने न्यूज सुनी कि स्पोर्ट्स सिलेक्शन होने वाला है और बस 3 किलोमीटर भागना है, अब जिसकी प्रैक्टिस है वो तो बड़े आराम से भागने वाला। तुम क्यों खुश हो गए, तुमने भाग भी नहीं दिया, भाग लेने से पहले बस आपने देखा, अब बड़े खुश हो गए। खुशी के मारे आपने पार्टिसिपेट हो गए। और जिस दिन इवेंट था, पैठन तालुके में जितने भी विलेज है पूरे आ गए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, भागने से पहले ही तुम्हारे अंदर एक पावर आने वाली है कि मैं जीतने वाला हूं। अरे हमारे स्पोर्ट टीचर ने 6 महीने से रोज हमको भगाया किया। अब आपको पता चला है कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, तुम भाग सकते हैं। कितना भागना है, 3 किलोमीटर भागना है। हाँ, जो बच्चा या बच्ची कभी भागी नहीं, उसके लिए 3 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। पर तुम 6 महीने से मैं बाय चांस करवा के रहता था, भागो। अरे तुमने जब स्टार्ट होगा इवेंट और जब वो सिटी बजाए भागो दौड़, जो मैं जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल के बच्चे ऐसे भागे चीते के जैसे, अरे तुरंत पहुंच गए 3 किलोमीटर। और तब जीतने के बाद उन्हें जो खुशी हो गई, अरे यार उस खुशी का तो कोई अनमोल नहीं। फिर कहते अरे वाह भगवान समान टीचर थे। इसलिए कभी भी इंस्टेंट पे मत जाओ, पहले भी वीडियो बना, इंस्टेंट पे मत जाओ, नतीजे पे मत जाओ तुरंत, थोड़ी देर होने दो। पर सफलता जब आती है तो पूरे पैटर्न में से तुम चमक गए, और ऐसे चमक गए कि पूरा खर्चा तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र राज्य उठाने वाली थी। देखो थोड़ा संयम रखो पर पढ़ाई करो। ओके चलो अब मेन मुद्दा सर्कल। अब कभी भी whenever any teacher or myself when we write the chapter name, तो उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, तब जाके उसके अंदर हम जाने वाले। अब सर्कल सबको पता है, क्या पता है बच्चों, इस फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। आपने मान भी लिया। अगर मैं 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाता हूँ, उनको बोल दिया ऐसी फिगर को हम सर्कल बोलते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके दिमाग में ज्यादा सोच नहीं आती।
पर हम बड़े हो गए। सर वो सर्कल बना कैसे, एक बार हमें समझाओ, क्लियर करो, पिक्चर क्लियर करो। ठीक है, डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, सर्कल कैसे बनता है, इट इज अ सेट ऑफ infinite points which are equidistant from a fixed point. Fixed point is called center of सर्कल। अब मैंने सबसे पहले एक डेफिनेशन बनाई, क्या बनाई, किताब के अंदर नहीं है, यही तो खासियत है, सर्कल चैप्टर क्यों हार्ड है, यही खासियत है, बहुत सी बातें छुपाई गई है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो सर्कल इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी पॉइंट एक समान दूरी पे है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी पॉइंट उठाओ, सबका मेजर सेम आने वाला है। ऐसे पॉइंट मैंने चिपका दिए, एक फिक्स पॉइंट और बाहर में पॉइंट चिपका दिए, फिर सबको मैंने जोड़ दिया, सबको मैंने जोड़ दिया। अब जो तस्वीर बनी है उस तस्वीर का नाम है सर्कल। अब इसको एक बार क्लियर हो गया कि सर्कल क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर फाइनाइट का मतलब होता है कहीं तो भी अंत होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता है। बिल्कुल सही, तू भी सही है, एकदम सही क्वेश्चन किया तूने। तो तेरे मन में डाउट क्या आ गया, सर आपने कहा, आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उस बच्चे के मन में क्या डाउट आया, किसके बेस पे, कि उसको सिखाया गया था फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट में कुछ तो भी, यहां से स्टार्ट हो गए यहां पे खत्म हो गए, लिमिट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जब स्टार्ट हुआ उसका एंड ही नहीं, जब स्टार्ट हुआ उसका एंड ही नहीं, उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से सही, इनफाइनाइट का मतलब है डेफिनेशन के हिसाब से सही। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, तूने जो क्वेश्चन पूछा मेरे को बिल्कुल सही है कि सर अगर पॉइंट्स यहां से स्टार्ट हो गए तो कंटिन्यू करके यहाँ पे फिर से वो एंड हो गए ना। हाँ, इसके बीच में कितने पॉइंट्स है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ तो भी पॉइंट्स होने वाले हैं, कितना भी बड़ा सर्कल बनाओ तुम, पर जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड होगा ना सर, उसको हम इनफाइनाइट कैसे क्या बोल सकते हैं। अरे बोल सकते भैया, तेरे को बेसिक कंसेप्ट पता नहीं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ज्योमेट्री में, बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट का मतलब है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। अगर मैंने कहा पॉइंट है, अब उसका कितना मेजर है, मेजर करके दिखा, उसका डायमेंशंस नहीं है, उसको हम तसं मोजमाप आपण नाही करू शकत। पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, क्लियर कट दिया है, अब वो आपको पता नहीं, वो बात अलग है, इसलिए मैंने कहा इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। फिर चाहे सर्कल इतना भी छोटा क्यों ना हो, इसके अंदर कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कोई बोलेगा नहीं सर 40 पॉइंट है, 50 पॉइंट है, अरे 50 नहीं 10 पॉइंट है। हम एक पॉइंट का भी डायमेंशंस मेजर नहीं कर सकते। अगर एक पॉइंट का डायमेंशंस हम मेजर नहीं कर सकते तो बाकी का कहां से मेजर करने वाला तुम। फिर सर उसका पर्पस क्या है, फिर उसका यूज क्या है। हाँ, उसका यूज है ना, अगर यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है, इधर कुछ तो भी है, इधर कुछ तो भी है, अगर मेरे को दिखाना है तो मैंने उस डॉट की मदद से दिखाया कि इस व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे कुछ तो भी है। वो पॉइंट ने इंडिकेट किया या डॉट ने इंडिकेट किया, पर उसका डायमेंशन कितना है कोई नहीं बोल सकता, इट हैज नो डायमेंशंस। अब समझ आ गया, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट क्यों शब्द मैंने यूज किया, इनफाइनाइट इसलिए यूज किया क्योंकि जो तस्वीर बनी है वो पॉइंट से बनी है, और पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। छोटी बात है पर आगे जाके तकलीफ देती है। अब भी से क्लियर हो गया, आगे चल के तकलीफ नहीं देती है।
अब सर्कल में इतना नहीं बोलूंगा कि भैया ये सेंटर होता है, भैया दीदी ये रेडियस होता है, दीदी ये डायमीटर होता है, दीदी ये कॉर्ड होता है, सर जी ये भी कॉर्ड होता है। अब वो आपको सब पता है क्योंकि 7, 8, 9 से वही था, रेडियस दिया डायमीटर ढूंढो, उसका डबल ढूंढना, वो हमें सबको आता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ चैप्टर सर्कल, सर्कल कैसे बनता है उसकी डेफिनेशन कहीं पूछते नहीं, पर पता होना सही है। और जिसने सर्कल पे कमांड आ गई, जिस बच्चे की या दीदी की सर्कल चैप्टर पे कमांड आ गई, समझ जाना वो 40 के आसपास ही आने वाला है, 38, 39 के आसपास ही घूमने वाला है। सबसे बड़ी दुविधा इसमें चैप्टर में क्या है, बहुत सारी बातें हिडन है, उसे ढूंढना है या दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके इसका समाधान होता है, उस क्वेश्चन का आंसर आता है। चलो अब सीधा मेन मुद्दा। अब मैंने वो बातें छोड़ दिया, क्या रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, वो आप करके घर पे एक बार 8 का भी किताब खोलो, आपको समझ में आ जाएंगे। अब मुद्दे की बात क्या कह दिया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास कम से कम, आई रिपीट, मेरे पास कम से कम 2 सर्कल होने वाले हैं। 2 से ज्यादा भी हुए तो चलेगा, पर कम से कम 2 सर्कल चाहिए। अगर इनकी रेडियस सेम है, इसकी भी आर इसकी भी आर, नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसकी 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी अगर 7 सेंटीमीटर है, तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूं, आई कैन से दैट दिस 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर बस 2 ही सर्कल क्या, मैंने पहले ही कहा कम से कम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल शब्द आया तो कम से कम 2 सर्कल होने वाले हैं। 2 से ज्यादा भी हुए तो वेल एंड गुड, 3 हो दो, 4 हो दो, 5 हो दो, पर कंडीशन क्या है, उनकी रेडियस कैसे होनी चाहिए, रेडियस मस्ट बी सेम, देन वी कैन से दैट अमुक तमुक दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फिर क्या है, टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल वो तो कहीं तो भी एक पॉइंट पे वो टच होते हैं। दो सर्कल में बस यहां पे एक पॉइंट ए पॉइंट जो बड़ा सर्कल है उसका भी एक पॉइंट है, और ए पॉइंट जो छोटा सर्कल है उसका भी एक पॉइंट है। ऐसे समय में हम क्या कहते हैं, टचिंग सर्कल। एक पॉसिबिलिटी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक ऐसा भी हो सकता है और दूसरा टचिंग सर्कल अंदर से भी टच हो सकता है। एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, दोनों का भी एक पॉइंट कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, टचिंग सर्कल। फिर आता है इंटरसेक्टिंग सर्कल, बस पता होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसके बारे में तो थ्योरम है आगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग हो तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आई रिपीट, 2 सर्कल 2 पॉइंट को अलग अलग जगह पे, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, दोनों ने अलग अलग जगह पे टच किया। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग सर्कल। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कम से कम 2 सर्कल या उससे भी ज्यादा हुए तो भी चलेगा, पर इनका सेंटर एक ही होने वाला है। इसका सेंटर ये, इस सर्कल का सेंटर सेम। कितने सर्कल मैंने ड्रॉ किए, 3 सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, तीनों का भी सेंटर क्या है, ओ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहेंगे कि ऑल द 3 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडियस सेम, टचिंग सर्कल 2 सर्कल एक पॉइंट पे टच होने वाले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर सेम होने वाला है, एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 सर्कल आपस में कहीं तो भी कट करने वाले हैं एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट अलग अलग जगह पे, उसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल। चलो अब एक्टिविटी 1 में क्या दिया, हालांकि हो चुका है, कंसिडरिंग दैट इट हैज बीन कंप्लीटेड इन 9th स्टैंडर्ड। क्या है एक्टिविटी 1, बोलो एक प्रॉपर्टी है, अब इसको दिमाग में फिट करो, लाइफ टाइम तक फिट करो, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। एक्टिविटी क्या है, एक सर्कल है मेरे पास जिसका सेंटर ओ, एक कॉर्ड है जिसका नाम ए बी। अब एक्टिविटी 1 क्या कहना चाहती है,
एक्टिविटी 1 कहना चाहती है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। आई रिपीट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, जैसे कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर ऐसा होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बाइसेक्ट दी कॉर्ड, मतलब AM की दूरी और BM की दूरी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास 2 पॉइंट है, मैंने दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OMA, OMA एक ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल OMA एंगल AMO इक्वल टू 90। अगर 90 है तो मैं इस ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो मैं आराम से इसकी वैल्यू ढूंढ सकता हूं, मतलब आई कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, मैं AM ढूंढ सकता हूं। और जैसे मैंने AM निकाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने आप AB आ गया। जो नीचे टेक्स्ट बुक के नीचे दिया ना एक्टिविटी 1, और नीचे 3 लाइन दी, डैट डैट डैश, डैट डैट डैश, डैट डैट डैश। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इन ट्रायंगल AMO एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के अंदर एंगल AMO इज 90 डिग्री। और नीचे देखो, वी कैन अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 बातें इसकी मदद से आती है, और जो हमारा अधूरा अधूरा काम है उसको पूरा कर जाती है। क्योंकि अब आगे इसकी जरूरत गिरने वाली है कि हर वक्त राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम। 3 साइड में से 2 साइड आपको दिए जाएंगे, एक साइड ढूंढना है। अब दूसरा, इसका भाई एक्टिविटी दूसरी क्या बोलती है, मेरे पास एक कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड। अब उन्होंने खुद दिया, अब दिया उन्होंने M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें क्या होने वाला है, अगर ऐसा दिया कॉर्ड M, कॉर्ड AB इज अ कॉर्ड, M इज अ मिड पॉइंट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, a segment joining center of the circle, a segment joining center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord। इसका उल्टा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, मतलब M मिड पॉइंट है। अब उल्टा दिया M मिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। फिर ज्वाइन करो, फिर से जो इसमें हुआ है सेम इसमें होने वाला है। इन ट्रायंगल AOM is a right angle triangle, M is 90 degree, we can apply the Pythagoras theorem। अब 2 साइड देंगे, एक साइड ढूंढना है। जो मैंने बातें यहाँ पे की सेम वही बातें वहां पे कहेंगे, ठीक है। और तीसरी एक्टिविटी और एक, अगर 2 कॉर्ड सेम है AB एंड CD, इनका मेजर सेम है, जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेंटर के भी, तो 100% OKL इसका मेजर और इसका मेजर सेम होने वाला है। क्या कहा मैंने, एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड है, जैसे कि AB 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से जो उनकी दूरी होने वाली है, जैसे कि OK की दूरी क्या है और OL की दूरी क्या है, पता नहीं कितनी है, हम वो ढूंढेंगे बाद में, पर दूरी एक समान होती है। इसका उल्टा क्या होने वाला है, एक सर्कल है मेरे पास, एक कॉर्ड दूसरी कॉर्ड, AB एक कॉर्ड, CD एक कॉर्ड, सर्कल का सेंटर। अगर इससे इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है और इसकी ये भी दूरी 4 सेंटीमीटर है, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से एक समान दूरी पे है, तो 100% AB का मेजर कितना है पता नहीं, पर AB का मेजर और CD का मेजर सेम होने वाला है। आपको याद करना पड़ेगा इसको, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक्टिविटी दी आपको, हो चुका है, आपको याद रहना चाहिए। आगे आगे जैसी मुसीबत गिरेंगी वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। अब तक जो मैंने बातें की वो बस बेसिक कंसेप्ट था, जिसकी जरूरत थी, आपको थोड़ा मोटिवेट भी किया, और जो बेसिक बातें थी वो भी हो गई। अब मुद्दा, अब चैप्टर के साथ साथ चलेंगे, क्या कहेंगे। अब सबसे पहला मुद्दा क्या है, सर्कल
passing through 1 point, 2 point and 3 point। अब इसका मतलब क्या होता है? अब मेन मुद्दा है, अगर किसी ने मेरे को एक ही पॉइंट दिया और पूछा आउट ए मास्टर हाउ मेनी सर्कल यू कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, एक ही पॉइंट दिया, तुम कितने सर्कल बना सकते हैं, कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बस उस पॉइंट में से जाना चाहिए। तो मेरे मुंह से आंसर आ गया है, मेरा पहला आंसर आ गया, क्या है? इनफाइनाइट सर्कल। तुम जितना सोच सकते हो उतने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये एक सर्कल, इसका सेंटर से हमें कुछ लेने नहीं, बस ए में से पास हो गया। ये दूसरा सर्कल, इसका सेंटर इधर कहते हैं, एक सर्कल, ध्यान दो बस, सेंटर किसका किधर भी आन दो, उससे कुछ लेन देन नहीं। अबे गाड़ी रुकने वाली है क्या? तुम सेंटर किधर भी दो, बस इतना रेडियस और सर्कल बनाओ, सेंटर चेंज करो, कंपास लो, स्टील पॉइंट बाहर, पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे खींचो, आ गया ए में से गया, चेंज करो, खींचो 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 खींचो, ये तो पूरा प्लेन है ना, पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना, फिर से चेंज करो, लो ड्रॉ करो। कितने ड्रॉ कर सकते हैं? अरे हाँ, कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन टू गिवन सिंगल पॉइंट। क्लियर? वेरी गुड। अब मुद्दे की बात, अगर दो पॉइंट दिए मेरे को, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए, ए और बी, आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स से, अब दो पॉइंट है, उसको पट्टी की मदद से जोड़ना, कोई दिक्कत है? अब इधर दो, इधर इधर, जहां पे बी पॉइंट देना दो, पर एक सेगमेंट तो बनने वाली है, तो मैंने थोड़ी सीधी ड्रॉ की। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास का स्टील पॉइंट ए पे, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, रिपीट द प्रोसेस, दो आर्क कट किए तो दोनों आर्क में से जो लाइन जाती है, ऐसा कुछ तो भी मेरे को बाई ने सिखाया था, अब थोड़े सेमी स्टैंडर्ड में सिखाया था। सर 22 थी क्या? हाँ 22 थी, कोई दिक्कत आपको? अब मैं कह सकता हूं लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ की? टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, कीप द स्टिल पॉइंट ऑन बी, एक आर्क ऐसा एक आर्क ऐसा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है? अब यहाँ पे जो पॉइंट है, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ओ ए और ओ बी का मेजर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अगर सेम है तो मैंने अगर सर्कल बनाने की कोशिश की तो एक सर्कल आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं? एक ही बन सकता क्या? नहीं ना, सुनो ना, लाइन पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब मैंने दूसरा ओ डैश इधर पॉइंट ला, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, अब O1 A एंड O1 B सेम होने वाले, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या है? टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। जो सेगमेंट के एंड पॉइंट से उससे उसकी दूरी एक समान होती है। अब मैंने सर्कल बनाने की कोशिश की, सर्कल कुछ तो भी ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, बन गया। फिर मैंने A2 पॉइंट इधर लिया, एक सर्कल बनाने की कोशिश की। अब कैसा सर्कल आया? ऐसा है। सर ऊपर लेना, जहां पे लेने का तेरे को ले, कोई दिक्कत नहीं। ये उसकी रेडियस। अब सर्कल कैसा है? हम कितने सर्कल बनाएंगे? आ गया। लाइन पे कितने पॉइंट से? लाइन एक इनफाइनाइट है, एक्सटेंड नीचे एक्सटेंड अप। अगर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट से तो ईच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ईच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल तो आंसर क्या आने वाला है? इनफाइनाइट। क्या कहा मैंने? सिंगल पॉइंट दिया तो भी हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट दिए तो भी हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा ड्रॉ, किसी को समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर वेरी गुड, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब चलो आखिरी का मुद्दा। अब आखिरी का मुद्दा क्या है? अगर मेरे पास 3 पॉइंट दे, क्या कहा मैंने? 3 पॉइंट्स मानो, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी,
एक पॉइंट सी। इसमें एक कंडीशन है, दो कंडीशन है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए, पहली कंडीशन क्या है, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए और मैंने सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की तो क्या क्या हो सकता है, इन दोनों में से एक सर्कल तो आराम से जा सकता है, इन दोनों में से एक सर्कल आराम से जा सकता है, नहीं तो इन दोनों में से एक सर्कल आराम से जा सकता है। इसके अलावा क्या, हमें ऐसा सर्कल चाहिए, हमें ऐसा सर्कल चाहिए कि तीनों पॉइंट्स में से जाना चाहिए, तीनों पॉइंट्स में जाना चाहिए। अरे यार वो तो मुमकिन नहीं सर, वो तो मुमकिन है। हाँ, कोई भी दो पॉइंट से जा सकता है, तीन पॉइंट से अगर वो कोलिनियर है वो संभव नहीं। तो कंडीशन, इफ गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ मेनी सर्कल कैन पास? नन। आंसर क्या आ गया? नन। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पॉइंट्स कोलिनियर है, हम समझ गए सर। फिर दूसरी भी पॉसिबिलिटी है ना क्या? अरे हाँ, तू चिल्ला मत ना, थोड़ा शाम बैठना। क्या है? नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तब, अरे हाँ वही पॉसिबिलिटी रहती है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट बी यहाँ पे, एक पॉइंट सी यहाँ पे, हो गए नॉन कोलिनियर। सर नीचे लेने का, अब देखो नीचे लेने का, नीचे कोई दिक्कत नहीं। अब दो पॉइंट है, उसको जोड़ देना, कोई मुसीबत है नहीं, ठीक है। जैसे हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई थी, सेम कंसेप्ट कीपिंग इन माय माइंड, आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एबी। एबी को मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कैसी? आधे से ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर से दो पॉइंट से मेरे को क्या करो, बीसी के बारे में सोचो और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसी, क्या सबको आता है, किया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझो यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं तो भी टच हो गए। अगर मैंने ऐसा बोल दिया, क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ए बी, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। तो ओ बी और ओ ए की दूरी क्या होने वाली? सेम होने। वैसे मैंने इसको भी जोड़ दिया, ये लाइन L2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बीसी का है। अगर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 100% जितना OB है उतना ही OC होने वाला है, बिल्कुल सही। अब OA इक्वल टू OB और OB इक्वल टू OC, तीनों का भी रेडियस कैसा है? सेम है। अगर मैंने कंपास का स्टिल पॉइंट O पे पुट किया और अपनी पेंसिल का टोक एक तो B पे पुट करो, नहीं तो A पे पुट करो, नहीं तो C पे पुट करो, और कोशिश करो एक सर्कल बनाने की, अपने आप एक सर्कल आने वाला है, अपने आप एक सर्कल आने वाला है कि वो सर्कल तीनों भी पॉइंट से जाने वाला है। कोई डाउट? करके देखो।